ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉब्लम्स. We will solve some numericals on scalar vectors. ठीक है, let's start with first numerical. Students, numerical मैं dictate कर रहा हूँ. I'm just dictating. You note it down, please. जल्दी लिखो. The sum of sum SUM. The sum of magnitudes of two forces acting on a body. Two forces acting on a body is 16 Newton. Is 16 Newton. Full stop. If the resultant vector is normal to the smaller force, if the resultant vector is normal to smaller force and it has magnitude 8 Newton and it has magnitude 8 Newton, then find the two forces. I hope students आपने question लिख लिया, लिखा होगा, but एक बार मैं quickly read कर लेता हूँ फिर से. I'm just reading it quickly. कुछ देख लो आप एक बार, confirm करो. The sum of magnitudes of two forces acting on a body is 16 Newton. Full stop. If the resultant vector is normal to the smaller force and has a magnitude 8 Newtons, then find the two forces. Question I hope सबने लिख लिया. एक बार अच्छे से read कर लो. Read it. हाँ. So if you read thoroughly, you will understand that यहाँ पे दो forces की बात की गई है. There are two forces which are acting on a body, right? So इस question को थोड़ा समझने के लिए let's draw one diagram. See, imagine that ये एक one force है. It's a one force. Its name is F1. और एक दूसरा force भी है. ठीक है, दूसरा force मैं भी बना रहा हूँ. See, ये दूसरा force है. अब इसमें एक डाउट आ सकता है कि सर ये दोनों फोर्सेस के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है. ऑब्ट्यूज कैसे पता चला, एक्यूट हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, वो मैं भी बताता हूँ. आफ्टर ड्राइंग दिस, क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, द रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स. नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर. सी, F2 में से सपोज F1 इज स्मॉलर फोर्स. जो F1 है ना, it's a small force and F2 is a larger one. So इनका जो resultant vector है, it is perpendicular on the smaller force. So उसके लिए ये obtuse angle ही होना चाहिए. देखो कैसे. Now I am applying parallelogram law. Parallelogram law में apply कर रहा हूँ. See this. See, यहाँ पे एक parallelogram दिख रहा है students. Suppose ये parallelogram है. Look at the parallelogram very carefully. और इसका भी रिजल्टेंट वेक्टर आपको याद होगा कैसे बनाते हैं. इन द पैरेललोग्राम लॉ, जस्ट थिंक हाउ टू ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर. द रिजल्टेंट वेक्टर इज ड्रॉन एज अ डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट? तो देखो मैं भी रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा हूं. सी, सपोज रिजल्टेंट वेक्टर इज आर बार. सो अभी देखो आपको क्लियरली दिख रहा है दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन द स्मॉलर फोर्स. ये देखो, है ना,
You can see resultant vector is perpendicular on the smaller force. For this purpose, I am drawing the obtuse angle between F1 and F2. Clear? Okay. अब ध्यान से देखो. F1 and F2 both are going in different direction. F1 F2 का direction different है. So that's why आप simply ऐसे add नहीं कर सकते. You simply cannot add the magnitudes. But suppose if we take the magnitude sum, the sum of F1 F2 is 16. स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैंने बार नहीं दिया, ऊपर से एरो नहीं दिया है. That means it is just a magnitude. Magnitude of F1 plus magnitude of F2 is 16. And R bar is a resultant vector. The magnitude of R bar is I am writing as R. It is 8 Newton. स्टूडेंट ये डेटा गिवन है. And using this हमें क्या फाइंड करना है? Using this we have to find out the two forces. F1 F2 को फाइंड करना है. So here I am writing. We have to find this thing. ये दोनों फाइंड करने हैं. So student ये डायग्राम और ये गिवन है. पहला आप इतना लिख लो. Write down this much, then I will explain. So एग्जाम में जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपका फर्स्ट टास्क ये रहता है that you have to draw this diagram and you should be very well clear what is given, what is asked. जब तक ये नहीं पता आप कुछ नहीं कर सकते. You have to understand this first. Okay, completed. Yeah. अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? Now see how to solve this type of questions. See, suppose the angle between F1 and F2 is obtuse angle. F1 और F2 के बीच में obtuse angle है. But suppose this angle, see this angle is let's say theta. ये angle theta है. Student देख सकते हो. Now listen, F1 और F2 vectors जो हैं, इन दोनों का जो total है वो R bar है. R bar is a resultant vector of F1 F2, right? इसका मतलब है F1 और F2 का जो summation है वो R bar है. अब देखो करना क्या है यहाँ पे. Here I will resolve the F2. मैं F2 को resolve करूंगा दो components में. Here I'm writing resolving this vector F2. So if you resolve F2 into two components, तो ध्यान से देखना students अभी. This is one of the components of F2 और F2 का जो दूसरा component है वो ऐसे upward direction में आएगा. Here I'm drawing. So see, this is a X component of F2 and this above it is a Y component of F2. ठीक है. So F2 को resolve किया. You can see this theta angle. Theta angle यहाँ पर है ना. So this component of F2, this component will be F2 cos theta. और ये जो component है, it will be F2 sin theta. Student clear है ये? This will be F2 cos theta and this will be F2 sin theta. Okay. Now look here students. ध्यान से देखो. See, अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना. F2 को हमने रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट्स में, तो अभी F2 को देखने की नीड नहीं है. F2 ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है. F2 इज नॉट देयर. F2 cos थीटा और F2 sin थीटा को देखो. अब देखो यहाँ पे अभी तीन वेक्टर्स है. वन इज F1, अदर इज F2 cos थीटा एंड अदर इज F2 sin थीटा. इन तीनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज R बार. ठीक है, मतलब जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है. अगर रिजल्टेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है, that means the horizontal forces are cancelling each other. F1 must be cancelled by F2 sin theta. Student ध्यान से सुनना. F1 must be cancelled by F2 sin theta. ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. Horizontal forces will cancel each other. That's why resultant of all these forces is vertical, ना. So F1 must be cancelled by F2 sin theta. इसके लिए F1 must be equal to F2 sin theta in magnitude. Magnitude में F1 must be equal to F2 sin theta. ये थोड़ा समझो. जिनको अभी भी इसमें डाउट है, सिंपल एक बात बताता हूँ.
आप एक के पास एक बॉडी है, उस बॉडी पे F1 फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में। दैट मींस बॉडी इज गोइंग अपवर्ड्स। अब F2 को आपने रिजॉल्व कर दिया दो पार्ट्स में, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू सी F2, लुक एट F2 cos एंड F2 sin। रिजल्टेंट वेक्टर अपवर्ड है। अपवर्ड कैसे हो सकता है? जब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैंसिल करेंगे, ओनली वर्टिकल फोर्सेस विल बी देयर, देन रिजल्टेंट विल कम वर्टिकल। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट्स। सो F1 मस्ट बी इक्वल टू F2 cos थीटा, ठीक है। सो F1 मस्ट बी इक्वल टू F2 cos थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। और एक लास्ट चीज, इफ F1 is cancelled by F2 sin theta, F1 is cancelled by F2 sin theta, तो फिर बचा कौन सा वेक्टर? बचा वेक्टर F2 cos theta। So F2 cos theta ही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। F2 cos theta is equal to रिजल्टेंट। सी ये दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर है विच इज F2 cos theta, it is nothing but your resultant vector, because these two cancel each other. So F2 cos theta must be resultant. Now resultant vector is given 8, resultant 8 है, so F2 cos theta must be 8 and F2 sin theta is equal to F1। Clear students? ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास sin थीटा का टर्म है, यहाँ पे cos थीटा का टर्म है। You must be knowing that sin square theta plus cos square theta equals to 1। ये पॉइंट आपको पता है। तो फ्रॉम हियर आई विल फाइंड sin square theta, फ्रॉम हियर आई विल फाइंड cos square theta, और उसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। सो लेट्स फाइंड sin square theta फ्रॉम हियर, cos square theta फ्रॉम हियर एंड पुट इट हियर। समझा? हम लोग ये करने वाले हैं, तो आप ये स्टेप्स लिख लो पहले एंड देन यू स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू। sin थीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। स्टार्ट डूइंग दिस। क्लियर? रिमेंबर ये दोनों कैंसिल होंगे तभी जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। या पुट अप sin थीटा वैल्यू एंड cos थीटा यहाँ पे पुट करो इन दिस इक्वेशन। So what you are going to get? So I hope student आप ये कर सकते हो। Put sin and cos, and ultimately you will get this equation. This is the value of sin square theta, this is the value of cos square theta equal to 1। sin square theta plus cos square theta equal to 1। इसको आप easily solve कर सकते हो। Take LCM, if you take F2 square LCM and solve it little bit, you will get F2 square equal to F1 square plus 64, right? Now pass F1 square over here, so F2 square minus F1 square equal to 64। This is like a square minus b square formula। यहाँ पे वो formula लगाओ, a square minus b square formula। So it will be F2 minus F1 in the bracket F2 plus F1 equals to 64। F2 plus F1 already मेरे पास है। It's a sum of two magnitudes। F1 F2 का sum याद करो आपके पास है 16 है। Sum of F1 F2 is 16। So यहाँ से आपको F2 minus F1 की वैल्यू मिलेगी। F2 minus F1 will be 64 by 16, that is 4। So student, I got the F2 minus F1 value and we are already having F2 plus F1 value। F2 plus F1 is 16। Student, ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। Solve these two equations simultaneously and get the answer।
You can get two forces. Solve करो जल्दी. Yeah, tell me what's the answer. Yeah, 10,6. हाँ, F1 F2 जाने दो, कोई एक 10 होगा, कोई दूसरा 6 होगा. It's 10 and 6. Yes, स्टूडेंट क्लियर है? एक बार ध्यान से देख लो. यहाँ पे अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कैसे किया, रिमेंबर स्टूडेंट्स, F1 और F2. See, I hope you have finished. Yeah, everybody is giving correct answer. सबका आंसर करेक्ट है. ठीक है स्टूडेंट, अभी ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमारा हो गया, बट अगर आपने इसको समझा नहीं है तो इट इज ऑफ नो यूज, एग्जाम में नहीं लिख पाओगे. थोड़ा समझ के लो, ताकि अगर एग्जाम में नंबर्स चेंज कर दिए, थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर दिया, तो भी आप कर सकोगे. अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस. F1 और F2 का रिजल्टेंट R बार है. सो रिजल्टेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है, मतलब इन सारे फोर्सेस का टोटल जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है. दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल कैंसिल ईच अदर. ये दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे. वर्टिकल कंपोनेंट्स इज नथिंग बट F2 cos थीटा. तो F2 cos थीटा इज नथिंग बट योर रिजल्टेंट. क्लियर? इसमें आई होप ये क्लियर है पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. ये थोड़ा सा मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लिया, इट्स स्लाइटली लेंथी क्वेश्चन. अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे जा रहा हूं. नोट डाउन द सेकंड क्वेश्चन. हाँ, नोट डाउन द सेकंड क्वेश्चन. लिखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of p bar. Find the unit vector in the direction of p bar. ठीक है, अब p bar के आगे लिखो, p bar is equal to, ये देखो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, स्क्रीन को देखो. p bar is equal to 2 I cap plus 3 J cap टू आई कैप प्लस 3 J cap प्लस 4 K cap. ठीक है, तो क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं. फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p bar. p bar is equal to 2 I cap plus 3 J cap plus 4 K cap. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपने लिख लिया? ठीक है, अब ये क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो. ये देखो, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है दैट p bar is 2 I cap 3 J cap 4 K cap. These are the three components of p bar. ये p bar के तीन components हैं, x component, y component and z component. ये तीन components हैं. Okay, now suppose look at this. Suppose ये वेक्टर है p bar, it's a vector जिसके ये तीन components हैं. अब देखो, let's say there is a unit vector, एक यूनिट वेक्टर है, whose name is u cap. See u cap. U cap is a unit vector, but u cap has the same direction as of p bar. u cap और p bar का डायरेक्शन सेम है, तो हमको u cap फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है ना. क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द यूनिट वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, मतलब u cap के भी तीन कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं. u cap आई वांट टू राइट इन द फॉर्म ऑफ 3 कंपोनेंट्स. u cap के तीन कंपोनेंट्स चाहिए. ठीक है, जैसे p is given in the form of 3 components, I want u in the form of 3 components. ठीक है, अब कैसे करेंगे? If you remember,
हमने स्टार्टिंग में व्हेन इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर्स मैंने बताया था दैट एनी वेक्टर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। पी को हम लोग यू कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम है। आई कैन राइट दिस वे, पी बार वेक्टर इज इक्वल टू पी टाइम्स यू कैप। किसी भी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यू कैप। दिस द p ऑन द राइट हैंड साइड पे जो p लिखा है इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द p। सो ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके अब देखो सिंपल है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे p बार लिखा है, सी द p बार विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। p बार को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, p बार को मैंने ऐसे लिख दिया। ये जो राइट हैंड साइड पे p है, द p ऑन द राइट हैंड साइड इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द p, ये p का मैग्नीट्यूड है। सो स्टूडेंट आप में से कोई बता सकता है ये जो p का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में कैसे निकालूं p का? दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द p का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? व्हाट शुड आई राइट ऑन द प्लेस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द p? एनीबॉडी फ्रॉम यू माइक ऑन करके बता सकते हो? एनीबॉडी ओपन योर माइक एंड टेल मी। Root of 2 square plus 3 square plus 4 square. हाँ वेट अ सेकेंड, शेरॉन इज सेइंग, शेरॉन बोल रही है कि इट विल बी p का जो मैग्नीट्यूड है इट विल बी 2 प्लस 3 प्लस 4। शेरॉन ये 2 और ये 3 और ये 4, आई एग्री दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ p, लेकिन 2 is going along x axis, 3 is going along y axis, 4 is going along z axis, ऐड नहीं हो सकते। अगर डायरेक्शन सेम होगा तो आप ऐड कर पाओगे, ठीक है? 2 प्लस 3 प्लस 4 तो नहीं होगा। हाँ somebody told me, अभी किसी ने माइक ऑन करके बताया that magnitude of p will be root of x component of p square plus y component of p square plus z component of p square, like this। स्टूडेंट ये करेक्ट है, this is correct। whenever you resolve a vector into 3 components, root of one component square plus other component square plus third component square, this gives you magnitude of the p, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होता है 2 प्लस 3 प्लस 4, दिस इज 2 i कैप, हाउ कैन यू ऐड i कैप विद j कैप? क्या घोड़े और गधे ऐड होते हैं क्या? 2 घोड़े और 3 गधे मिलके क्या बन गया? 5 गधे? नहीं ना। यू कैन नॉट ऐड 2 हॉर्सेस एंड 3 डोंकीज, इट विल नॉट बिकम 5 डोंकीज, नहीं बन सकता ये। रिमेंबर 2 i और 3 j ऐड नहीं होता है, दे आर गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यू कैन ऐड देम, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो आप उनको ऐड करके सिंपली यू कैन राइट डाउन द रिजल्टेंट, बट ऐसे ऐड नहीं होता है। दिस इज अ वे यू हैव टू फाइंड रिजल्टेंट। दिस पॉइंट आई हैव टोल्ड यू ड्यूरिंग द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अभी सिर्फ एक स्टूडेंट ने ये मुझको बताया। मैग्नीट्यूड ऑफ p इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सो सी स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड विल कीप एज इट इज। ये हमने p बार को लिखा है, p बार कैन बी रिटन दिस वे। किसी भी वेक्टर को आप 3 पार्ट में स्प्लिट करके लिख सकते हो। जिनको ये भी नहीं समझ आया कि सर इसको ऐसे कैसे लिखा है, एक सिंपल एल्जेब्रिक एग्जांपल देता हूं। इफ सपोज इन द एल्जेब्रा यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम में 50 लिखा हुआ है, 50 को अगर मैं ब्रेक करके ऐसे लिखूं 20 प्लस 20 प्लस 10, 20 प्लस 20 प्लस 10, तो रॉन्ग थोड़ी है, लिख सकते हो। वैसे ही किसी वेक्टर को ब्रेक करके ऐसे लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ 3 कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे देखो, इट विल बी रूट ऑफ, it will be 2 square plus 3 square plus 4 square into u cap. So solve this, you will get a 29, root of 29 you will get. This is root of 29.
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट हो गया, इंटरनेट प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो ये अगर रूट 29 यू कैप passes root 29 on that side, ultimately you will get u cap. U cap will be 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap divided by root 29. स्टूडेंट ये आ जाएगा आपका आंसर। देखो अल्टीमेटली यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट मैं थोड़ा और इसके बारे में बताऊंगा, बट यू फर्स्ट फिनिश अप टू दिस। हाँ, अब एक स्टूडेंट बोल रहा है रिपीट करो, क्या इसमें रिपीट करो, यहाँ तक तो मैंने समझा दिया था। के बाद अभी ये एक लास्ट स्टेप है, सिर्फ रूट 29 को वहां पास किया। स्टूडेंट आपको स्टार्टिंग में इन टॉपिक्स में लास्ट 2 स्टेप्स क्या बताऊं, ये सॉल्व करना, रूट ऑफ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये सॉल्व कर रूट 29 आएगा। वैल्यू ऑफ दिस वन इज रूट 29। लास्ट 2 से में कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको खाली सॉल्व करके ये लिखा है और रूट 29 को वहां पास किया, यू कैप आ गया। कुछ भी नहीं है लास्ट के 2 स्टेप में, कुछ न्यू नहीं है। स्टूडेंट आप हाँ स्टूडेंट्स, स्केलर वेक्टर के जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, मैं बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ये सॉल्विंग सम हाई लेवल क्वेश्चंस ओनली। स्टार्टिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, बट एज यू प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस आपकी डिफिकल्टी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मेक इट वेरी क्लियर। वी गॉट दिस वन एज आंसर। एक्चुअली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट फॉर योर नॉलेज, आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं इसके बारे में कुछ और भी बता देता हूँ। हैव यू कंप्लीटेड अप टू दिस ना? So here we got u cap. ठीक है स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, बट लेट मी टेल यू सम मोर थिंग्स अबाउट दिस क्वेश्चन। See, so we got u cap equals to 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap divided by root 29। वो मैं अभी लिखने वाला हूँ, डिवाइड बाय रूट 29 भी है। ठीक है, तो जो नीचे डिवाइड बाय रूट 29 है उसको मैं अलग अलग करके दे सकता हूँ। आई कैन राइट दिस वे, 2 अपॉन रूट 29, 3 अपॉन रूट 29 एंड 4 अपॉन रूट 29। स्टूडेंट मैं डिनोमिनेटर को सेपरेटली ऐसे करके लिख सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज अ यूनिट वेक्टर। एक बार लास्ट ईयर मुझे एक स्टूडेंट ने इसमें डाउट पूछा था, तो मुझे याद है वो, लास्ट ईयर ऑल्सो आई सॉल्व सिमिलर क्वेश्चन। तो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये यू कैप है, ओके, बट ये देखने में यू कैप नहीं लगता है, मतलब ये देखने में यूनिट वेक्टर तो नहीं लगता है। यूनिट वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड 1। यहाँ पे तो 2 रूट 29 4 3 रूट 29 ये सब लिखा हुआ है। अगर मुझे कोई बोले कि इसको प्रूफ करो कि ये यूनिट वेक्टर है, हाउ कैन आई प्रूव दिस इज अ यूनिट वेक्टर, ऐसा उस क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने। ऐसे क्वेश्चंस आपको भी जनरेट होने चाहिए आपके माइंड में भी। तो क्वेश्चन ये है कि ये देखने में तो यूनिट वेक्टर नहीं लगता है, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट ने बोला कि कैसे प्रूफ करेंगे कि ये यूनिट वेक्टर है। सो स्टूडेंट कैसे करेंगे बताता हूँ। पहले आप इसको समझो, ये है आई कैप, जे कैप और के कैप। व्हाट इज दिस ऑल? आई कैन से दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ यू कैप। यू कैप के ये 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, these are the 3 components of u cap. Now if I am having 3 components, मेरे पास 3 component है, so using these 3 components how can I find out magnitude of u cap? u cap का magnitude मैं कैसे find करूंगा? So अगर आपके पास ये 3 components हैं, magnitude of u cap you can find out by doing this, root of 1 component square plus other component square plus third component square। याद है?
कोई भी वेक्टर है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं आपके पास, 3 कंपोनेंट्स को यूज करके हाउ कैन यू फाइंड द मेन वेक्टर? रूट ऑफ दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर। यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? हियर विल पुट रूट ऑफ 2 by root 29, here 3 by root 29, here 4 by root 29। स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करो, आपका आंसर 1 आएगा। सॉल्व दिस, you'll get a 1। दैट मीन्स यू कैप का मैग्नीट्यूड 1 प्रूव हो गया। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है मतलब वो यूनिट वेक्टर है ना, hence proved that it is indeed a unit vector। अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो आप कोई भी चीज कभी भी प्रूफ कर सकते हो। सो यू कैप इज अ यूनिट वेक्टर, hence proved। बिकॉज़ ये आप सॉल्व करो देखो 1 आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया रिगार्डिंग दिस थिंग। सो आई होप नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। ओके, चलो लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। I am dictating the third question, write it down। देखो, a force F bar, write down, a force F bar equals to minus 2 I cap plus 5 J cap plus 8 K cap। यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, is applied on a body, is applied on a body okay at a point, is applied on a body at a point having position vector, at a point having position vector r bar, position vector r bar equals to minus I cap plus 2 J cap। यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है माइनस आई कैप प्लस 2 J कैप, फुल स्टॉप। आगे लिखो, फाइंड द टॉर्क, find the torque acting on a body find the torque acting on the body when axis passes through origin, when axis passes through origin। स्टूडेंट हम लोग बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आई एम सॉल्विंग एटलीस्ट मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, तो थोड़ी डिफिकल्टी लग सकती है। डोंट वरी, एज यू प्रैक्टिस आ जाएगा सब। बहुत सिंपल क्वेश्चंस करके कोई मतलब नहीं होता है, यू शुड डू सम टफ क्वेश्चंस आल्सो। ओके, सो आई होप यू हैव रिटन दिस, completed writing। now I am explaining the meaning of this question। थोड़ा मैं मीनिंग समझा देता हूँ। Yeah, look here, suppose this is x and y axis, so this is origin, ये origin है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉडी है, वी डोंट नो व्हाट इज द शेप ऑफ द बॉडी, बट यहाँ पे सपोज एक बॉडी है, ये देखो, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है लाइक दिस, ये देखो फोर्स लग रहा है। फोर्स जिस पॉइंट पे हम लोग लगा रहे हैं, लेट्स से वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर बार है। डू यू रिमेंबर व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टिल दिस पॉइंट।
vector drawn from origin till this point is called as position vector of this point. तो ये position vector है r bar. जिनको ये position vector में अभी भी confusion है कि क्या है, it's a drawn from origin till this point, so it is called position vector of this point. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, जितना origin से इस point तक का distance है, whatever is a distance from origin till this point, that is the magnitude of this vector. In direction is from origin, direction origin से towards this point. ये आ गया. अब देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपने ये जो फोर्स लगाया ना, इस फोर्स से ये बॉडी रोटेट कर रही है. दिस फोर्स इज ट्राइंग टू रोटेट द बॉडी. और एक्सिस कहां से जा रही है, एक्सिस ओरिजिन से जा रही है. थ्रू ओरिजिन एक्सिस इज पासिंग. ठीक है. सो इफ एक्सिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बॉडी की वो ओरिजिन से जा रही है. सो देखो ये एफ बार इज अ फोर्स एंड आई कैन से आर बार is a distance of this force from axis. R bar क्या है, R bar is the distance of this force from axis. आपको याद होगा मैंने एक बार बताया था ये चीज भी. If you take cross product of R and F, R cross F का cross product लोगे ना, तो this is defined as torque. एक बार मैंने बताया था torque is something which is required for rotating the body. तो टॉर्क इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ. स्टूडेंट्स जैसे वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट्स अ वेरी वेल एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट. सिमिलरली दिस इज अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी विद टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी होगी. आर बार क्रॉस एफ बार गिव्स यू द टॉर्क. ठीक है. सो आज हमको ये टॉर्क फाइंड आउट करना है. So torque is defined as R bar cross F bar. ठीक है. अब क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, if you look at the question carefully, F bar के 3 components given है, R bar के भी 3 components given है. That means this F and R, both of them are given in the form of components. So torque के भी components ही आएंगे. सब ऐसे लिख सकते हो, torque equal to आर क्रॉस एफ. जो है आर क्रॉस एफ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप. आर के 3 कंपोनेंट्स हम लोग लिखेंगे, देन इट इज एफ बार. एफ के 3 कंपोनेंट्स लिखेंगे. तो हियर वी विल राइट कंपोनेंट्स ऑफ आर एंड देन वी विल राइट कंपोनेंट्स ऑफ एफ. याद है ये 3/3 डिटरमिनेंट. सो सी द कंपोनेंट्स ऑफ आर बार. आर बार आप देख लो, आर बार गिवन है आपको माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप. सो इसका जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट इज -1. एक्स कंपोनेंट -1 है, इट्स -1. वाई कंपोनेंट इज +2, बट इट इज डज नॉट हैविंग जेड कंपोनेंट. तीसरा कंपोनेंट नहीं है, तो तीसरा कंपोनेंट 0 है. हियर 0 विल कम. सिमिलरली अभी एफ के 3 कंपोनेंट्स लिखो. राइट ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ एफ. It's -2, 5 and 8. -2, 5 and 8. Okay. It's -2, 5 and 8. Now everybody knows how to solve this determinant. You can solve. थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको टॉर्क मिल जाएगा. You will get torque in the terms of I cap, J cap and K cap. Solve this determinant. You should remember how to solve determinant. डोंट वरी, मैंने जो नंबर्स दिए हैं उससे बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, मतलब छोटा आंसर आएगा.
Students, this must be the answer. 16 I cap plus 8 j cap minus 1 k cap. यस स्टूडेंट, आंसर स्क्रीन पर है, देखो ये आ रहा है क्या? अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये 3/3 सॉल्व करने को नहीं हो रहा है, सो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो. इज देयर एनीबॉडी हु इज हैविंग अ डाउट इन 3/3 डिटरमिनेंट? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो. इफ एनीबॉडी इज न्यू लुकिंग एट इट फॉर फर्स्ट टाइम, डेफिनेटली यू विल नॉट गेट. बट जो स्टूडेंट ने ऑलरेडी लेक्चर्स अटेंड किए हैं उनको ये आना चाहिए अभी. ठीक है स्टूडेंट्स, ये पता है आपको क्या मिला है? दिस यू गॉट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क. टॉर्क के 3 कंपोनेंट्स मिले हैं ये. These are the 3 components of torque. If somebody asks you the magnitude of this torque, आपको यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. Now I am telling you extra. If somebody asks you the magnitude of torque, magnitude को ऐसे लिखेंगे, it will be root of 16 square plus 8 square plus 1 square. -1 का स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर will be +1 square. So on solving this, we will get a magnitude of torque. So remember, जब भी वेक्टर के 3 components given होते हैं, by using this formula, you can get the magnitude of that vector. Is that clear? Question completed? Okay, I hope this question is completed. So I'm going to the next problem. Next question में start कर रहा हूँ. Write down the next question. ठीक है, next question में start कर रहा हूँ. Write down. The resultant vector of A bar and B bar. The resultant vector of A bar and B bar is perpendicular to A bar. मैं रिपीट कर रहा हूं. The resultant vector of A bar and B bar is perpendicular to A bar, and it is equal to half of magnitude of B bar, and it is equal to half of magnitude of B bar. Okay, full stop. Find the angle between A and B. Find the angle between A and B. A bar and B bar. So students, I hope आपने क्वेश्चन पूरा लिख लिया है. फिर भी मैं एक बार क्विकली रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन. यू जस्ट वेरीफाई. The resultant vector of A bar and B bar is perpendicular to A bar, and it is equal to half of magnitude of B bar. Full stop. Find the angle between A bar and B bar. So I hope आपने क्वेश्चन लिख लिया है. Now see how to solve this question. So यहाँ पे देखो 2 वेक्टर्स की बात की गई है. Again there are 2 vectors, A bar and B bar. So I'm drawing over here. This is let's say A bar, और एक वेक्टर है B bar. B bar मैं ऐसे बनाऊंगा. Again I have drawn obtuse angle between A and B. ऐसा क्यों किया है? क्योंकि क्वेश्चन में वापस बोला गया है कि इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, लेट्स से इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज R bar. रिजल्टेंट R bar है. दिस R bar is perpendicular on the A bar. So ऐसा हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. R bar has to be perpendicular on A bar. That's why angle between A and B should be obtuse.
ठीक है, सही। देखो पैरेललोग्राम लॉ मैंने फिनिश किया, ऐसा हम लोग प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नाउ लुक हियर, बी बार जो है, बी बार, द मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज लेट्स से बी, magnitude of B bar is B, and the magnitude of R bar is R. This is the magnitude of R bar. So question में क्या given है, that this R is equal to half of B. Student ये question में given है that R is how much? B by 2. So मैं diagram में show कर देता हूँ। Student ये देखो, B का magnitude है B, R का magnitude है B by 2. ये देखो, and now we want to find out the angle between A and B. As we can see clearly, the angle between A and B is obtuse. Obtuse angle है, मतलब it is 90 plus something. So suppose वापस मैं क्या करता हूँ, this angle I am calling as theta. ये देखो, इस एंगल को मैंने थीटा नेम दिया. See carefully. See carefully. Okay. अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ये थीटा फाइंड कर ले, इफ आई जस्ट फाइंड थीटा, तो भी मुझे पूरा एंगल मिल जाएगा. द कंप्लीट एंगल विल बी 90 प्लस थीटा. आई जस्ट वांट टू फाइंड थीटा. ठीक है. नाउ आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम. मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप ये थीटा फाइंड कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग द डायग्राम. डायग्राम को यूज करके भी आप थीटा फाइंड कर सकते हो. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम. फाइंड आउट द थीटा यूजिंग जस्ट डायग्राम. डायग्राम देखो, ऑब्जर्वेशंस करो एंड फाइंड आउट द थीटा. एनीबॉडी try to solve and find out the theta. 60 degree. हाँ, स्टूडेंट ध्यान से सोचो, थीटा कैसे निकालेंगे यूजिंग डायग्राम. The two triangles that you can see in the diagram, both triangles are right angle triangles. दोनों right angle triangles है. Degree. Yeah, students, you have to find out the theta. 60 degree. 60 degree. अक्षय नायर 60 डिग्री मिला है. शेरॉन को 45 डिग्री मिला है. Okay, Girish Patil is saying 60 degree. मयूरेश और शुभम को 30 डिग्री मिला है. So I'm getting variety of answers. Devika Ravindran got 45 degree. So okay, Ajit Suresh got 45 degree. So I'm getting variety of answers. Okay, 30, 45, 60. Chalo, thank God somebody is not getting 90 degree. That's a good thing. आपको theta 90 नहीं मिला. Very good. Now student, correct answer is that ये theta is 60 degree. No, sorry. Theta, yeah, theta will be 60 degree. Theta 60 है. 45 wrong है, 30 wrong है. How theta is 60? Look at this triangle. ये triangle देखो. Look at this triangle. It's a right angle triangle. यहाँ पे 90 degree है. In this triangle, if I apply cos theta if I apply, cos theta is adjacent side upon hypotenuse. थीटा का जो adjacent side है वो है b by 2.
In the length it is b by 2 and hypotenuse है b. So adjacent side of this theta is b by 2. Hypotenuse is b. Okay. So student ये देखो bb gets cancelled. We are getting cos theta equals to 1 by 2. Now you must be knowing that cos of 60 degrees 1 by 2. So theta is 60 degree. Theta 60 है. Now we want to find out the total angle between A and B. A और B के बीच में total angle चाहिए. So it will be theta 60 degree plus 90 degree. 90 plus 60 it will be. That is 150 degree. So student answer 150 degree है. The angle between A bar and B bar is 90 plus 60. That is 150 degree. So आज से एक याद रखो student. अगर जो resultant vector है, if resultant vector is perpendicular on the one vector, then the resultant vector is perpendicular on one vector, then angle between A and B will be always obtuse. Okay, students. Clear? Now listen. Now I'm doing one question on the subtraction of vectors. Subtraction के ऊपर मैं एक question करा देता हूँ. Subtraction is not very important topic, but at least you should have a knowledge of subtraction also. So now we'll do one numerical on subtraction of vectors. Okay. ठीक है. So मैं question dictate कर रहा हूँ. I'm dictating the question. You please note it down. इसमें लिखो. A car is moving towards east. A car is moving towards east with velocity 50 kilometer per hour. 50 kilometer per hour. Full stop. It takes a turn. It takes a turn towards north. It takes a turn towards north, such that it takes a turn towards north such that its final velocity is 50 kilometer per hour towards north, such that its final velocity is 50 kilometer per hour towards north. Full stop. Find the change in velocity. Find the change in velocity. ठीक है students, लिख लिया? Find the change in velocity. Okay. So here I am first of all explaining the question. मैं पूरा question explain कर रहा हूँ. Look at the screen. This is east. This is west. North, south. Always whenever direction based question is there, this way you have to draw east, west, north, south. Now कार का जो initial velocity है, initially उसका जो velocity है वो towards east है. Look at this. So initial velocity given है 50 km per hour, but here I'm not writing 50. Initial velocity को मैं u लिख रहा हूँ, u bar. Let's say u bar, not u cap, u bar. Let's say u bar is the initial velocity which is given 50. अगर velocity 50 given है, that means it is understood that length of this arrow will be 50. ये arrow की length 50 होगी, ये याद रखना students. इसके बाद देखो velocity change हो गई, and now final velocity is towards north. ये देखो ये final velocity है.
v bar. Final velocity भी 50 given है. Final velocity is also given 50. That means this arrow will also be of 50 length. ठीक है. अब कुछ स्टूडेंट को ये एक डाउट आ सकता है कि सर इनिशियल स्पीड फॉर 50 है. Some student can get doubt like this that sir initial speed 50 है, final speed भी 50 है, तो चेंज हुआ कहाँ वेलोसिटी? वेलोसिटी चेंज बाय 0, क्योंकि इनिशियल भी 50 है, फाइनल भी 50 है. नहीं, चेंज हुआ है ना. इट हैज चेंज इन द डायरेक्शन. ईस्ट से इसका डायरेक्शन नॉर्थ हो गया ना, सो डायरेक्शन में तो चेंज हुआ है. सो एज पर फिजिक्स अगर कोई वेक्टर डायरेक्शन में भी चेंज हुआ है, नॉट इन द मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन में चेंज हुआ है, सो इट इज अ चेंज हुआ है. सो वी नीड टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी. ओके, अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे वो ध्यान से देखो. लुक एट दिस केयरफुली. ये डायग्राम आप बाद में ड्रॉ कर सकते हो, बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस. नाउ लुक हियर. We want to find out the change in velocity. Student, अभी ध्यान से सुनना. Change in velocity जो है ना, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. Change in velocity is also a vector. See, velocity is a vector ना. Change in velocity also is a vector. ये भी एक वेक्टर होता है. In the entire physics, change कभी भी आपको find करना हो ना, change in velocity or change in temperature, okay, or change in current, anything, whenever you want to find change is given by this formula: final velocity minus initial velocity. Change is always given by this formula: final velocity minus initial velocity. So student, final velocity मैं लिखता हूँ v bar, initial velocity मैं लिखता हूँ u bar. So देखो यहाँ पे subtraction of two vectors आ रहा है. Now you will learn what is subtraction. Final velocity minus initial velocity will give you change in velocity. ये मैं आगे explain करूंगा, but student जो change in velocity होता है ना, वो भी एक vector होता है. मतलब this change is also a vector. मतलब change को भी एक direction होगा. तो change in velocity is also a vector. इसको मैं लिखता हूँ delta v. delta v. This triangle मतलब delta v लिखा जाता है इसको. ठीक है, ठीक है. अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है कि सर चेंज इन वेलोसिटी आप वेक्टर क्यों बोल रहे हो, व्हाई आई एम सेइंग चेंज इन वेलोसिटी इज अ वेक्टर, तो मैं आपको समझा देता हूं. देखो, अगर आप चेंज इन टेम्परेचर निकालोगे ना, इफ यू कैलकुलेट चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में होगा. मतलब चेंज इन टेम्परेचर भी एक पर्टिकुलर टाइप का टेम्परेचर ही होता है. इट इज इन केल्विन. चेंज इन करंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ करंट ओनली. चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेक्टर ओनली. वेलोसिटी वेक्टर है तो उसका चेंज भी एक वेक्टर ही होता है. अब 2 मिनट के बाद मैं ये वेक्टर को समझा दूंगा पूरा. बट रिमेंबर, चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर विच इज गिवन बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. दैट गिव्स यू चेंज. सो आई कैन से डेल्टा v is obtained by subtraction of v minus u. अब देखो ये subtraction कैसे करते हैं स्टूडेंट. v bar माइनस u bar ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं: v bar प्लस माइनस u bar. मतलब subtraction of vector is actually the addition of two vectors. Subtraction is a type of addition. Subtraction को मैं ऐसे लिखते हैं: v added with minus u. जब आप v में माइनस u ऐड करोगे, so that is called as v minus u. ठीक है. Subtraction भी एक टाइप से addition ही होती है. There is nothing like subtraction. Subtraction is actually a type of addition. Addition of v with minus u. Minus u क्या है? Minus u is a negative vector of u. Minus u is a negative vector of u. है ना? यहां तक समझ गया? ठीक है. अब स्टूडेंट हमको डेल्टा v फाइंड आउट करना है. We wish to find delta v. Delta v देखो अभी 2 मेथड से मैं फाइंड करके दिखाता हूँ. I will find by 2 methods. See the first method. According to first method, delta v is a sum of v and minus u. Delta v कैसे मिलेगा? v और minus u को ऐड करके, है ना? Look at the diagram. डायग्राम में ये u है ना, u के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाओ. u के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने वेक्टर बनाया.
See this vector, it is opposite to u and it is having same magnitude as of u. इसका magnitude same as u है, so इसको बोलेंगे minus u. ये minus u हो गया. Now v added with minus u gives you delta v. मतलब v और minus u का resultant हमको find करना है, वो है delta v. So everybody knows parallelogram law. If I use parallelogram law like this, see, ये जो मैंने एरो ड्रा किया है, it is a as per parallelogram. If I go, this is a resultant of v and minus u ना, v और minus u का resultant है, so this will be delta v. ये delta v है, okay. So delta v कौन से डायरेक्शन में आ रहा है? It is coming in the northwest direction, northwest. ये है delta v, the change in velocity. अब if you want to find magnitude of this delta v, magnitude find करना है, तो simple है. The length of this arrow is 50. The length of this arrow is also 50. ये दोनों adjacent sides जो हैं वो 50-50 है. So since this is also 50, this is also 50. So it is a square. ये square हो गया because adjacent sides are 50-50. It is a square. So diagonal of the square is delta v. Diagonal कैसे मिलता है? Diagonal of a square is given by root 2 into side. Diagonal of a square is given by root 2 into side. So diagonal कौन है इसमें? Delta v है. So delta v will be root 2 into side. Side is 50. Side को 50 substitute करो. So delta v आ रहा है 50 root 2. This is one method of finding delta v. It is coming 50 root 2. So हम ऐसे बोल सकते हैं जो velocity change हुआ, the change is 50 root 2. Vectors में ऐसे change find की जाती है. तो 50 root 2 is actually delta v. Okay. By chance आपको ये method नहीं समझ में आ रहा है? How do I got this method? मैंने v में minus u को add कर दिया. Addition of v and minus u is delta v. तो मैंने v और minus u का resultant find किया. That resultant is delta v. In case you are not getting this method, आपको ये method नहीं समझ में आया, see the other method. Other method is also very simple. Other method ये है that v bar is a final velocity ना. V bar को लिख सकते हैं 50 j cap. I can write it as 50 j cap. And initial velocity u, it is 50 I cap. So v is 50 j cap, u is 50 I cap. This is x-axis and this is y-axis. V bar is 50 j cap, minus sign, ये minus, u cap is 50 I cap. 50 j cap minus 50. This is nothing but delta v. ये delta v है. It is a vector form. This is delta v. These are the two components of delta v. Delta v के ये दो components है. If you are having two components of delta v, how to find magnitude of delta v? Delta v का magnitude कैसे मिलेगा? Root of one component square plus other component square. इसको solve करो 50 root 2 आ जाएगा. So delta v देखो 50 root 2 and magnitude. And this is the two components of delta v. So this way we find out the change in velocity. यहाँ पे आपको सीखने को क्या मिला? How to subtract two vectors. वो मैंने बताया. Subtraction of two vectors is actually kind of a addition of v with minus u. तो इसको addition लेके solve करो, जो मैंने यहाँ पे किया. या फिर v bar minus u bar को आप ऐसे लिख दो. v को लिखो 50j, u को लिखो 50 है. This become delta v. ये subtraction हो गया. And then यहाँ पे subtraction मतलब seriously subtraction नहीं करना होता है. आपको subtraction maths में ही सीखा है. आपको लगा subtraction मतलब 50 minus 50 करेंगे 0 आएगा. This is the way vectors are subtracted. When you subtract u from v, you will get delta v. So here I got delta v. Clear? तो diagram से करो या इस method से करो. Both are okay. आगे के chapters में आप ये सीखोगे कि ये delta v हमने क्यों find किया. From delta v, we can find out acceleration. Delta v से ही हमको acceleration मिलता है. तो आगे चल के हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे in the next chapters. ठीक है. So students,
I hope this is clear. Okay. So आज देखो मैंने काफी क्वेश्चंस करा दिए. I did so many questions. अब मैं एक या दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं. That completely you have to try. I will not help you in that. ठीक है. So I am giving you one numerical. You please try that numerical on your own. Okay. Write down the question. If A bar is equal to, if A bar is equal to 2 I cap plus 3 J cap. I am repeating. If A bar is equal to 2 I cap plus 3 J cap and B bar is equal to, I cap plus J cap. It is written on the screen. Screen pe dekh lo. If A bar is this much and B bar is this much, then find component of A bar, then find component of A bar along B bar. Then find component of A bar along B bar. ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले किया है, बट आई सजेस्ट आप पीछे वाला क्वेश्चंस मत देखो, अभी खुद ट्राई करो. Find the component of A bar along B bar. Quickly do it. I am giving you 2 minutes time. Yeah. Anybody got the answer? You can open your mic and tell me. Five root two. 5 root 2. 5 by root 2.
Yes, sir. सी आपको आई कैप और जे कैप के टर्म्स में कुछ आया होगा ना? You must have got in terms of I cap and J cap, na? Yeah, sorry, students. 5 by root 2 is correct, I think. 5 by root 2 is the answer. Yeah, sorry. I was thinking about other sum. 5 by root 2 is correct. Yes. You will get 5 by root 2. Student, everybody got 5 by root. It's 5 upon root 2. Getting 5 by root 2? जिनको अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सो आप बाद में पीछे जो हमने लास्ट लेक्चर्स में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किया है पहले भी हमने. व्हेन वी डिस्कस डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद एक सा क्वेश्चन सॉल्व किया था. सो आप उसको देख के इसको सॉल्व कर सकते हो. वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन अर्लियर. सो चलो अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं. आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन. नोट इट डाउन. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राइट डाउन. फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. राइट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the angle between two vectors. A bar is equal to 2I cap plus J cap minus K cap. It is on the screen. 2I cap plus J cap minus K cap. And B bar is equal to I cap minus K cap. I cap minus K cap. So student, यहाँ पे आपको दो वेक्टर्स गिवन है. A bar is given like this. ये इसके तीन कंपोनेंट्स है A bar के. B bar के दो कंपोनेंट्स गिवन है. So A bar and B bar are given like this, and we want to find out the angle between A bar and B bar. ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ. आई एम प्रोवाइडिंग यू वन हिंट. उससे आप आराम से सॉल्व कर लोगे. आफ्टर गिविंग हिंट यू नीड टू सॉल्व देम. सी, जब भी आपको दो वेक्टर्स गिवन है, ए बार और बी बार दोनों गिवन है, एंड यू वांट टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी. सो स्टूडेंट, ये मेथड आप फॉलो करना. देखो, टेक अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. लेट्स टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. ए एंड बी का जो डॉट प्रोडक्ट है, इट इज डिफाइंड एज ए बी कॉस थीटा. Dot product of A and B is defined as AB cos theta, where theta is the angle between A and B. So हमें theta को ही find करना है. We have to find theta. तो मुझे theta को find करना है, तो बाकी चीजें substitute करनी पड़ेंगी. अब आप थोड़ा जाके सोचो कि A dot B को मैं क्या लिखूं, इस डॉट प्रोडक्ट को मैं क्या लिखूं, और ये A की जगह पे क्या लिखना है, ये B की प्लेस पे क्या लिखना है, वो आप खुद सोचो. Substitute here, solve it and get the cos theta. Cos theta में से theta मिलेगा. ठीक है. एक चीज याद रखना, A and B both of them are given in the form of components. A और B components के फॉर्म में given है. आगे आप खुद सॉल्व करो स्टूडेंट्स. और एक चीज याद रखो, whenever two vectors are given in the component form and you want to find out the angle between them, you have to take a dot product of them. आगे सॉल्व करो एंड गेट मी द आंसर. जिसको आंसर आएगा वो मैसेज करके बता सकता है.
Try fast. Yeah, nobody's getting answer yet. अब एक स्टूडेंट बोल रहा है कि 3/2√3, तो उसको आगे सॉल्व करो ना। 3/2√3 आगे सॉल्व हो सकता है, सॉल्व इट फर्दर। थोड़ा सोचो, अपने मैथ्स लिया है ना 10th स्टैंडर्ड तक, उसके बेसिस पे सॉल्व हो सकता है ये आगे। सॉल्व इट एंड गेट दी थीटा फ्रॉम दिस। Yeah, anybody? सब वैकेशन मोड में है, कुछ काम नहीं करना है। ओके, किंजल केलुस्कर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो किंजल गॉट द आंसर। ओके, शुभम पाड़ी और पीयूष का आंसर करेक्ट है। हाँ, मनाली चौहान ऑल्सो करेक्ट। अब पता नहीं एक दूसरे का देख के बता रहे हो आंसर्स या खुद के आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। अभी 30 आंसर है। थीटा मस्ट बी 30 डिग्री। स्टूडेंट, थीटा का आंसर 30 डिग्री है। थीटा इज 30।